everyone, and welcome back to The Art of Words. Today we are going to talk about In the Bazaars of Hyderabad by Sarojini Naidu, and I am Rhea. So let's get to the poem. And before getting to the poem, let's get to know a bit about our poetess Sarojini Naidu. About Sarojini Naidu, we see that she was an Indian poet, she was even an activist and a politician. She was often referred to as the Nightingale of India. We know that Nightingale are the birds whose voice is literally mesmerizing, and we love to hear their songs, though they are not found in India. Now, she was known for her beautiful poetry, because of which she was given this title. Naidu was a prominent figure in the Indian independence movement, and she even advocated for self governance and equality. She served as the president of the Indian National Congress in 1925. After India's independence, she became the governor of Uttar Pradesh. Now, let's get to know about a few points that we need to remember while we are studying or listening to the poem. Originally, the poem was published in 1912. The rhyming scheme that we will be seeing is ABCBDB. It was published in the Bird of Times book. The stanzas and lines that are found here are there are five stanzas and six lines for each stanza. The rhyming scheme that we see is vibrant. It means that the rhyming scheme is showing some type of or different kinds of like colors, and it has a very vibrant theme to it. The poetic device that we see here are poetic imagery, alliteration, and traditional end rhyme. We see the ending rhyming scheme, and also there is alliteration, which means some words are being repeated, and we see like consonants are being repeated, and also poetic imagery. By reading the poem, we are going to see a image. There is an image of a bazaar going to form in front of us when we are listening or reading the poem. Themes: folklore and Swadeshi movement. Swadeshi movement because she is trying to portray the beautiful scenario of the bazaars that are present in India in Hyderabad. Now, let's get to the poem. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. Turbans of crimson and silver, tunings of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. I will also be explaining in Hindi. So, what do you sell, O ye merchants? In the first para, we see that she is like asking the merchants, what we call like the Vepari. She is asking that what they are selling, कि क्या बेच रहे हो आप लोग. Richly your wares are displayed. Wares means saman, your things. So she's saying that richly. It doesn't mean that rich. Rather, different varieties of things are spread there, displayed. It means spread out so that people will come and see and they will buy it. Turbans of crimson and silver. So turbans, we already know pagdi. So different kind of colors. Like there's crimson, it's similar to a bit of red, then silver color, and tunics of purple brocade. Tunics are a type of like clothing, and they are of purple brocade. So brocade, it's a fabric with different kind of patterns. Mirrors with panels of amber. We see that there are mirrors, and we have already seen a few mirrors where there are different type of panels. Like there is a mirror, and the side there are substances of which the mirror are the what can we say the frame that we say जो फ्रेम है वो अलग अलग सब्सटेंस से बना है जो हम लोग ज्वेलरी के लिए भी यूज करते हैं. Daggers with handles of jade. And daggers, dagger means knife, and the dagger's handle, it's made of jade. And jade is also a kind of a stone that we also again use for jewelry. So we are seeing that she's just asking how we see, and when we go to the markets, the bazaar, it means market. By using the word bazaar instead of using market also, we can see she's trying to portray the Swadesi movement, that we are going to use our own word बाजार इंस्टेड ऑफ मार्केट. तो आप लोग क्या बेच रहे हो व्यापारी? तुम्हारे जो सामान है वो हर जगह डिस्प्ले किए गए हैं, बिछा के रखे गए हैं. कहीं पे कोई पगड़ी बेच रहा है लाल रंग का, सिल्वर कलर का, कोई कपड़ा बेच रहा है अलग अलग पैटर्न का, और
मिरर्स बेचे जा रहे हैं, जो कि कांच बेचे जा रहे हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग पैटर्न्स में, पैनल्स में बने हुए, और अलग अलग धातुओं के बने हुए, जैसे कि जेड एक धातु है जिसका बना हुआ नाइफ, छुरी भी बेचा जा रहा है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैरा। व्हाट डू यू वे, ओ ये वेंडर्स। अब वो वेंडर से पूछ रही हैं कि क्या तुम लोग नाप तोल कर रहे हो। सैफरन एंड लेंटिन एंड राइस। क्या? तो क्या सैफरन दैट इज केसर, क्या आप केसर बेच रहे हो? लेंटिल जिसे हम दाल भी कहते हैं, क्या आप दाल बेच रहे हो? ना राइस बेच रहे हो? व्हाट डू यू ग्राइंड, ओ ये मेडन्स। तो ग्राइंड मतलब पीसना। ओ ये मेडन्स, मेडन्स आर दोज विमेन जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, हम लोग उनको मेडन्स कहते हैं। तो क्या आप लोग ग्राइंड कर रही हो, पीस रही हो, तो क्या पीस रही हो? सैंडलवुड मतलब चंदन, या हेना हम लोग जानते हैं मेहंदी, या स्पाइस या मसाले, आप लोग क्या कूट रही हो? व्हाट डू यू कॉल, ओ ये पेडलर्स। पेडलर वो लोग होते हैं जो चल चल कर सामान बेचा करते हैं, पैदल चल के वो सामान बेचते हैं। सो आप लोग क्या बेच रहे हो? चेसमैन एंड आइवरी डाइस। चेसमैन मतलब हम लोग जो चेस खेलते हैं, सो क्या वो? ना आइवरी डाइस, जो हम लोग डाइस खेलते हैं वो। आइवरी क्यों? बिकॉज वो हाथी का दांत, हम लोग जानते हैं आइवरी उसको कहते हैं, उससे उससे बना हुआ, ना वो बेच रहे हो। सो अगेन यहाँ पे एक बाजार का माहौल है जहाँ पे सामान बेचा जा रहा है, ऐसे जैसे कि एक कस्टमर है, वो एक कस्टमर की तरह पोएटस बात कर रही है कि क्या बेच रहे हो तुम, क्या तोल रहे हो तुम, क्या ग्राइंड कर रहे हो। तो ये सब। नेक्स्ट पैरा में हम क्या देखते हैं? What do you make, O ye goldsmiths, wristlet and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king। फिर वो क्या पूछती हैं? फिर वो कहती हैं ओ ये गोल्डस्मिथ्स, फिर वो सोने के दुकानदारों के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या तुम रेस्टलेट, हाथ में पहनने वाला बना रहे हो, ना एंकलेट, पायल, ना रिंग बना रहे हो, या तुम बेल्स बना रहे हो जो ब्लू ब्लू कलर के जो पीजन्स होते हैं उनके फीट के लिए, वो पैर में बांधेंगे। जो बेल हैं वो कैसे हैं? फ्रेल। फ्रेल का मतलब फ्रेजाइल हम लोग कह सकते हैं, बहुत कोमल हैं, वो कभी भी टूट जाएंगे, ऐसे हैं। एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, हम जानते हैं जो ड्रैगन फ्लाई होता है उसका जो विंग होता है उसको हम जैसे ही छूते हैं वो टूट जाता है, तो उतनी ही फ्रेल, कमजोर। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, हम कमर बंद जो पहनते हैं, जो डांसर्स होते हैं वो जो डांस करते हैं तो कमर बंद पहनते हैं, तो क्या वो गर्डल्स बना रहे हो तुम गोल्ड के? नस्काबार्ड्स, जो कमान होता है जिसमें हम तलवार रखते हैं, वो स्कबार्ड बना रहे हो। सो फिर वो सोनार के दुकान पे, सोने के दुकान पे जाके वो पूछती हैं। नेक्स्ट पैरा, इसमें क्या आता है? अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। What do you cry, O ye fruitmen, citron, pomegranate, and plum? What do you play, O magicians, sitar, sarangi, and drum? What do you chant, O magicians, spells for aeons to come? Now, what do you cry? तो तुम क्या चिल्ला रहे हो? हम लोग देखते हैं कि जब कोई फल बेचता है या सब्जी बेचता है तो हम देखते हैं कि वो लोग चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं। तो वैसे ही वो पूछ रही हैं कि तुम क्या चिल्ला चिल्ला के बेच रहे हो फल वालों? साइट्रन। साइट्रन एक टाइप का फ्रूट होता है, वो नींबू के जैसे ही होता है। देन पोमेग्रेनेट, वो हम जानते हैं अनार जिसको हम कहते हैं, एंड प्लूम। प्लूम भी ऑफ कोर्स एक अलग टाइप का फ्रूट होता है। सो क्या तुम ये सब बेच रहे हो? वट डू यू प्ले, ओ म्यूजिशियंस। तुम सब क्या बजा रहे हो? अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो क्या तुम सितार बजा रहे हो, सारंगी ना ड्रम बजा रहे हो? और मैजिशियंस, कोई वहां पे मैजिक भी दिखा रहा है, तो तुम क्या मैजिक दिखा रहे हो? क्या चैंट कर रहे हो? चैंट करना मतलब किसी चीज को मंत्र जैसा बोलना, तो तुम क्या मंत्र कर रहे हो? स्पेल्स फॉर एओन्स टू कम। एओन्स मतलब बहुत समय, जो आने वाले है समय। क्या तुम उस समय के आने के लिए कोई स्पेल कर रहे हो? क्या कोई बात कर रहे हो? लास्ट पैरा में हम देखते हैं वो क्या पूछती हैं। व्हाट डू यू वीव, ओ ये फ्लावर गर्ल्स। तुम लोग क्या बुन रही हो? फ्लावर गर्ल्स कुछ लड़कियां हैं जो फूलों को बैठ के, हम लोग देखते हैं फूलों का जो माला बनाया जाता है, गुथ रही हैं उनको वो, with tassels of azure and red। azure मतलब ब्लू कलर एक टाइप का होता है, एंड रेड,
टैसल्स, बहुत सारे फ्लावर रखे हुए हैं, तो सब उनको लेके वो वीव कर रही हैं, बुन रही हैं। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। दे रहा है कि क्या तुम जो दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम, हम दूल्हे को कहते हैं, तो क्या तुम चैपलेट्स, उसके लिए क्या तुम हार बना रही हो जो उसके बेड पे भी सजाया जाएगा और उसको भी पहनाया जाएगा। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स, न्यू गार्नर टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। ना, वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं, क्या तुम उनको इसलिए बना रही हो ताकि जो वो फ्लावर्स हैं वो क्या करेंगी, वो परफ्यूम, वो महक फैलाएंगी द स्लीप ऑफ द डेड, जो डेड पीपल हैं उन लोगों के ऊपर, जब इनको छिड़का जाएगा, उनके ऊपर डाला जाएगा पूजा, तो क्या तुम उसके लिए कर रही हो। सो हमारा पोएम जो हम देखे, इसमें पोएटस जस्ट इंडिया के, या स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं हैदराबाद का जो बाजार है उसको डिस्क्राइब कर रही हैं, और वो दिखाना चाहती हैं कि कैसे जो हमारे यहाँ के बाजार्स हैं वहाँ पे भी हम अपने सामान जो है जो खरीदे, और स्वदेशी मूवमेंट जो चला था कि ना हमें अपने इंडिया का सामान खरीदना है, विदेश का जो सामान है उसे हमें नहीं खरीदना है। सो उसी तरह वो उसी चीज को दर्शाने के लिए यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ के बाजारों की वो सुंदरता को एक तरह से निखारने की चेष्टा कर रही हैं। एंड व्हाट इज दैट इज द थिंग दैट शी इज ट्राइंग टू शो हियर। Now, thank you so much for listening to the video, and thank you so much for watching. And I hope that you learned something, and I hope you will subscribe and like the video and comment any question that you have. Thank you so much, and that was all today from The Art of Words. Thank you so much.